मैं कुछ भी कहो यार, आज की डेट में भी ना अ गर्ल ड्रिंकिंग इन अ लेट नाइट पार्टी हर आदमी नहीं देख पाता एट एट अ गुड वे। एक्चुअली इंडिया में ना डिफरेंट स्टेट्स के साथ काम करने का मतलब है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ काम करना। अच्छा करेक्ट हाँ ये भी एक इट इज देयर। जो रूल्स कर्नाटका में है वो जी। बॉम्बे में नहीं है, जो बॉम्बे में है वो गोवा में नहीं है। इट करेक्ट इज लाइक, मैं हमेशा कहती हूँ, वर्किंग इन इंडिया इज लाइक वर्किंग इन अ कॉन्टिनेंट हैंडलिंग डिफरेंट कंट्रीज। मुझे ऐसा लगता है जब कुछ करना है तो फिर करना ही है, उसके लिए सेकंड थॉट आज तक कभी नहीं सोचा मैंने कि जब करना है करना है। अगर लाइफ एक आपको सेकंड चॉइस दे लाइफ में तो उससे पूरी तरीके से कर लेना चाहिए बिना सोचे समझे। हिम्मत अपने आप आ जाती है। Welcome to Kadak Talks. Kadak for us is a personality trait. It's a way of life. It's an attitude. We firmly believe that India as a country is Kadak, and what makes India Kadak are the people of the nation. With Kadak Talks, our intention is to bring forward stories of these Kadak individuals, entrepreneurs, change makers, trailblazers, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, गिरे हैं, संभले हैं और कुछ कड़क करके दिखाया है। इनकी स्टोरी में वो जुनून है, वो जज्बा है जो हमें इंस्पायर करती है। मिलते हैं ऐसे ही कुछ कड़क पर्सनालिटी से ऑन कड़क टॉक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कड़क टॉक्स। मेरा नाम है मयंक शेखर और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई हैव नोन हर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. What I admire most about her is her perseverance, her never say no attitude, and I think she has got a tremendous self-belief. She is an MBA in finance, a single mother of 2 daughters. She took a 10 years career break at her peak to support family, came back and joined an industry which she knew very little about. 3 years now into this industry, she is now vice president of one of the leading gin brand in India called Samsara. So let's welcome Swapna Randhawa on Kadak Talks. Hi Swapna. Hi Mayank. So Thank you so much for such a good introduction. मैंने रटा हुआ है, मैंने ये रट के बोला है, ऐसा कुछ नहीं है. So Okay. what I wanted to to begin with, what I wanted to ask you is, I heard कि आप यहाँ आए हो किसी एक you are a speaker at one of the shows, right? Yes. So tell us something about this this event which is happening in Bombay. So tomorrow there is a food connoisseurs happening at Nesco Goregaon. So it is an industry event where people come, talk about industry, talk about their experiences, lot many new trends in food, in cocktails, in nightlife. So for that I have come to attend that event because they invited me as a speaker there. And you're going to talk about nightlife. Yes, nightlife, changing trends in cocktails, changing trends in industry market. So I guess there is a lot of alcohol-based or industry-based question that we are going to ask you later into this podcast. Sure. So let's start with, give us a quick, journey about how from an MBA finance into a career into a banking sector. फिर आपने 10 साल का ब्रेक लिया. Then you came back into an industry जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था. How did this all transition happen? MBA फाइनेंस में किया था, उसके बाद बैंक में जॉब करती थी, बट शादी के बाद फॉर फैमिली लेफ्ट माय करियर. देन ब्लेस्ड विद 2 daughters, so 10 years took a break. Actually honestly मैं वापस आने का मूड था नहीं to back to career, but at that time I just got separated from my husband, so have to get back to job. 10 years के गैप के बाद it was a new थिंग फॉर मी. चाहे मैं बैंकिंग में जाती, F&B में जाती, कहीं पर भी जाती, मेरे लिए नया ही होता क्योंकि 10 साल में सब कुछ बदल गया था. एवरी ट्रेंड इन ऑल द इंडस्ट्री, इट्स अ डिकेड, तो सब कुछ बदल जाता है उसके अंदर. 10 साल बहुत बड़ा ब्रेक था वो मेरा. तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि where to, I was giving interviews and I got lucky that I got the job from one of the leading players in the industry from Olive Group. Okay, so it was not directly into the liquor industry No. first. आपने पहले हॉस्पिटल मतलब Yes. रेस्टोरेंट ज्वाइन किया. पहले मैंने रेस्टोरेंट ज्वाइन किया. Okay. I was giving random interviews and when I got a call from Olive Group, one of the leading Yeah, players of the absolutely. industry, so it was something that yes, this is my calling, I have to go for it, and from there the journey started. Then worked with restaurants, worked with breweries, and then Samsara happened. First Alcobev brand which I'm handling, it just happened and here I am. This was mostly in Bangalore. आप Yes, Bangalore में ही completely थे. in Bangalore.
सो जैसे आपने बताया, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट कंफ्यूज, नॉट कंफ्यूज, आई थिंक वो इसी वाले ट्रेल में फंस जाते हैं ना कि यार 10 साल का ब्रेक ले लिया है, दोबारा शुरू कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, विल इंडस्ट्री में मेरी कोई जगह बनेगी नहीं बनेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं थे? नहीं, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब कुछ करना है तो फिर करना ही है, उसके लिए सेकंड थॉट आज तक कभी नहीं सोचा मैंने कि जब करना है करना है। अगर लाइफ एक आपको सेकंड चॉइस दे लाइफ में तो उससे पूरी तरीके से कर लेना चाहिए बिना सोचे समझे। हिम्मत अपने आप आ जाती है। चलो ये भी बात सही है कि हिम्मत अपने आप से आ हिम्मत अपने जाती आप है। आ जाती है। आई थिंक आपको ये लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो पहले पानी में कूद जाओ पहले गुरु, तैरना तो आ ही जाएगा धीरे तैरना धीरे। आ ही जाएगा। सो दिस एल्कोबेव इंडस्ट्री, जब इसकी बात करते हैं तो जनरली नोशन कैसा है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, यस। राइट? और वी डोंट सी मेनी वुमेन इन दिस काइंड, आई डोंट नो, आपका एक्सपीरियंस आप बताओ कैसा है कि ऑनेस्टली पहले नहीं था, बट अब चेंजिंग ट्रेंड के साथ मैं देख रही हूँ कि देयर आर वुमेन हु इज कम विच आर कमिंग इन द इंडस्ट्री। बहुत सारे आपको वुमेन बारटेंडर्स दिखेंगे आज की डेट में। तो दिस इज अ फैंटास्टिक चेंज दैट आई हैव सीन कि या बार टेंडिंग में there are quite a few bars here in Mumbai as well that I've seen. There are women bartenders, which is a very good sign. यस, पहले नहीं होता था हाँ, ये। पहले नहीं होता था। पहले नहीं So होता था। I think इससे ये भी शायद हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि there is a change in the way people are looking at alcohol. क्योंकि यस, पहले तो लोग अल्कोहल के बारे में ना बात करना चाहते थे, ना मतलब वो उसको पीपल used to look down यस, upon कि यार डाउन अबाउट, ये शराब पीता है, एग्जैक्टली। ये देखो शराब की बात कर रहे हो। नाउ women coming into industry is fantastic. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था समसारा तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे अगर किसी को बताएंगे मम्मा कहाँ काम करती हैं तो शी वर्क्स इन Yeah, अल्कोहल कंपनी, मुझे भी ये थोड़ा सा लगता था दैट हाउ विल दे फील। बट ऑनेस्टली टाइम इज चेंजिंग, ट्रेंड्स आर चेंजिंग। यस, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है, बट मुझे लग रहा है नाउ वुमेन इज टेकिंग अ लीड। so इसमें आपको कभी ऐसा कोई चैलेंज वगैरह महसूस हुआ जिसमें आपको लगा हो कि लोगों ने बोला यार इससे नहीं हो पाएगा, कहाँ ये लड़कियों को आपने हायर कर लिया, ये इंडस्ट्री उनके लिए बनी नहीं है, या इस तरह का कभी कोई आपको रेजिस्टेंस चैलेंजेस जो महसूस हुआ हो? चैलेंजेस तो देखो आते ही हैं, लोगों को तो बोलना ही है। एंड चैलेंजेस आते हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, लेट नाइट करेक्ट। पार्टीज, अल्कोहल ऑलवेज, अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम बहुत संभल के भी रहना वेरी पड़ता है। डिमांडिंग ऑल्सो, वेरी डिमांडिंग, संभल के भी रहना पड़ता अच्छा। है। सी मैं कुछ भी कहो यार, आज की डेट में भी ना अ गर्ल ड्रिंकिंग इन अ लेट नाइट पार्टी हर आदमी नहीं देख पाता एट अ गुड वे। अच्छा, सो आपको ऐसा महसूस हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि लोग तो बातें करते ही हैं, ऑल्दो आई एम बट ब्लेस्ड विद। ऐसा कोई आपको डायरेक्टली किसी ने आके बोला या किसी ने कोई अप्रोच चांस मारने की कोशिश की हो या इस तरह का कभी? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ हुआ, नहीं। ऐसा कभी कुछ बड़ी नहीं आपका हुआ। ऐसा नोशन है कि ऐसा लोगों को लगता होगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई नो ट्रेंड्स आर चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, बट अ सिंगल मदर, अल्कोहल इंडस्ट्री, लेट नाइट्स, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि लोग बातें करते हैं। जब तभी मैंने आपसे पूछा ना कि आपको ऐसा लगता है या आपने ऐसा सुना, बट चलो ऐसा कहा जा सकता है गिवन द प्रमाइस और अदर गिवन द See, honestly speaking, being in Bangalore, working with all the male bosses, I have been very lucky. वाह, I have been that is very good, yeah. lucky. मुझे आज तक सब बेस्ट बॉसेस मिले हैं, आज की डेट तक। 4 कंपनीज चेंज करी हैं, बट ट्रस्ट मी, प्रीडोमिनेटली आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जिनके साथ हम रोज का हमारा काम आई हैव है, वर्कड विद द बेस्ट तो वो बॉसेस अगर हाँ, जिन्होंने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया है। न्यू थी इंडस्ट्री में, सिखाया भी है, क्या बात है। सपोर्ट भी किया है, एंड एल्कोबेव भी नया था मेरे लिए। देन ऑल्सो आई गॉट द सपोर्ट। इन दिस वे आई हैव बीन लकी, ऑलवेज मेल बॉसेस बट ऑलवेज लकी। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ टेल अस इफ somebody is launching a new alcohol, because ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से एकदम सैचुरेटेड मार्केट है, तो इस ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट में अगर किसी ने नया ब्रांड लॉन्च करना है तो उसको क्या क्या चीज़ों को का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर किस तरीके के चैलेंजेस आपको लगता है कि उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं? सी आई फील दैट प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले देयर हैज टू बी अ डीप स्टडी। ओके, ऐसा नहीं कि मन में आया
गए और लॉन्च कर दिया। प्रोडक्ट नीड्स टू बी गुड, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट जितने ब्रांड्स आ रहे हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, बहुत से आपके आते हैं। अ फुल रिसर्च, मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट नीड्स टू बी रियली डिजाइंड इन अ वे ऑफ न्यू ट्रेंड्स। करेक्ट। आप तो खुद पता है, आप खुद बियर बनाते हो। मेरा जैसे होता क्या है कि अल्कोहल में आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इट, राइट। हमारे लॉज ऐसे बने हुए हैं कि आप डायरेक्टली जो है अल्कोहल को बेच नहीं सकते या डायरेक्टली उसको मार्केट नहीं कर सकते। सो नाउ दिस इज एन ऑलरेडी क्राउडेड मार्केट। मतलब जैसे अभी आपने समसारा बताया, समसारा की जो जिन है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये वीकेंड मार्केट था और आप घुस गए। there were already players into There it, was right? They already were players. I think Indian grown brands बहुत नहीं रहे होंगे, पर I think फिर भी greater than Greater Strangers than, and Sons, yes, there were quite a few brands already existing, yes. those were there in the market, and then I think Gordon's, Beefeater, इस तरह के भी brands थे। तो उसमें अपना एक niche जो है क्राफ्ट करना और उसको मार्केटिंग में नेविगेट करके प्लेस करना, वो चैलेंज जो है, आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज दैट यू गाइस हैव डन रियली वेरी वेल। सो अगर आपने किसी को, लेट्स से इफ आई वांट टू लॉन्च अ न्यू स्पिरिट इनटू द मार्केट, आप मुझे क्या बोलोगे, क्या करना चाहिए मुझे? मैं अपार्ट फ्रॉम जैसे आपने बोला प्रोडक्ट, चलो ठीक है, पहले चलो मैं कहता हूँ कि लेट्स अज्यूम कैटेगरी ऑफ रम, राइट। रम इज स्टिल, आई थिंक ओल्ड मंक के अलावा इंडिया में ऐसा कोई बहुत फेमस रम ब्रांड नहीं है। तो रम के कैटेगरी में अगर करना होगा तो कहाँ से करना चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो, रम के बारे में ना मैं बताऊं, ओल्ड मॉन्क इज एन इमोशन फॉर पीपल। करेक्ट। उसको, वो नोशन बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये भी उसको बदला जा ही नहीं सकता। इट्स यू नो, ओल्ड मॉन्क एक फीलिंग है, एक इमोशन है लोगों के लिए। करेक्ट। हाँ, चलो ये बात तो मानता हूँ इट कि इज ये अ तो फैक्ट, है। मानोगे? करेक्ट, बिल्कुल Right. सही है। उसके बाद आता है रम के अंदर बकार्डी। अगर व्हाइट रम की बात करें तो लोगों के दिमाग में पहली चीज आएगी बकार्डी, हाँ, राइट। सी बिकॉज आई थिंक कोई कंपटीशन ही नहीं है फिर। कोई कंपटीशन ही नहीं है, और इट्स अ गुड ब्रांड एट अ गुड प्राइस। इट्स अ गुड ब्रांड एज वेल। सो चलो, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से रिफ्रेम करता हूँ। आपके हिसाब से अल्कोहल, अल्कोबेव इंडस्ट्री में अभी क्या गैप है अगर किसी ने स्टार्ट करना है? बिकॉज मैं बियर्स में भी बहुत सारे स्टार्टअप देख रहा हूँ। करेक्ट, देयर आर आई थिंक वाइन्स तो ऑलरेडी बहुत, वाइन भी अच्छे हो गए। देयर आर क्वाइट अ फ्यू ग्रेट विस्कीज व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ इंडिया। सो इसके अलावा भी आपको और क्या गैप लग रहा है? क्या आपके हिसाब से गैप है जो कि एक नया प्लेयर आके एक्सप्लॉइट कर सकता है? मुझे लगता है टकीला इज अ मार्केट राइट नाउ। एक हाँ, गैप है, ये भी किसी ने मुझे भी एक रिसेंटली गैप है, बताया। बहुत अच्छा, बड़ा गैप है। ओके। एक हमारे पास डेस्मोंजी है, हाँ, उसके बाद आते हैं प्लेयर्स लाइक कैमिनो एंड 1800। वो प्राइस का जो गैप है ना इन दोनों के बीच में, वो काफी बड़ा है। बट आई थिंक मैंने अभी सुना था हाल फिलहाल में कि किसी ने टकीला के ऊपर में काम शुरू किया है, या नहीं, कोई आ रहे नया हैं प्लेयर्स, ब्रांड। आ रहे हैं, नो डाउट। अगर आप अभी गोवा जाओ तो मैं जब भी गोवा जाती हूँ, मैं एटलीस्ट 2-3 नए ब्रांड्स टकीला के देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ लोकल, ओके। आई एम ऑब्जर्विंग इट कि जब भी जाओ कुछ ना कुछ नया होता है। बट again the product, again the packaging, again the market which you are looking out for, price, that is important. But मुझे लगता है कि उसमें एक गैप है। एंड ऑनेस्टली इंडिया इज डूइंग ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल। अगर आप विस्कीज देखो, अमृत है, इंद्री है, ग्लोबल लेवल पे दे हैव डन अ ब्रिलियंट थिंग। अग्रीड, दे हैव डन। सो आपको लगता है कि हमारी जो इंडियन कस्टमर्स है वो अब थोड़ा इवॉल्व होते जा रहे हैं, या फिर उनका, या मासेस के लिए आज भी वही है कि भाई ट्राइड एंड टेस्टेड जो है हम वही पियेंगे, ये नए वाले जो गिमिक्स हैं या नए वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत ट्राई नहीं? अब इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो नहीं ट्राई करता, सिर्फ वही पीता है जो उसको पीनी है। बट मुझे लगता है इंडियन ऑडियंस रियली वांट्स टू ट्राई। उन्हें इंडियन ब्रांड्स ट्राई करने में मज़ा आ रहा है। दे आर इंजॉइंग इट एंड वी आर मेकिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स है। इंडिया इज मेकिंग ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स। अगर आप देखो, समसारा के एग्जाम्पल ऑफ कोर्स है, बट ग्रेटर देन इज अ गुड जिन। विस्कीज, अमृत कर लो आप, इंद्री कर लो, ऑल आर ब्रिलियंट। इनफैक्ट अभी मुझे आई थिंक अबाउट अ वीक अगो आई मेट समबडी, उनका वो कलर चेंजिंग जिन आया है मार्केट में, आई थिंक तेराकी।
निकासी, निसाकी निसाकी निसाकी. हम्म So, which was a brilliant, I mean, as a product, brilliant product. हमने यार टेस्टिंग वगैरह किया, उसमें हम्म वो सोडा डालो और या जिंजर एल डालो या कुछ लाइम डालो, हम्म इट चेंजेस द कलर. इट्स आई थिंक इंडिगो कलर की जिन है, हाँ बट द मोमेंट यू एग्जैक्टली पोर समथिंग हम्म ऑन इट, वो कलर चेंज करके थोड़ा पिंकिश, थोड़ा वैसा इंटरेस्टिंग कलर की आई हो हैव हर्ड जाती है. अबाउट इट यस सो आई थिंक यार प्रोडक्ट इनोवेशन तो हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द ओवर, यू नो, because it's a demand from the market. People are asking for it. yes and Indian consumers are ready to try new things Okay. they are ready to try new things ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ एक सेट होगा 50s या 60s प्लस का जिनको वही चाहिए जो वो पीते आए हैं बहुत टाइम से हाँ, कह सकते हैं. जैसे अब मैं अपने पिताजी को कन्विंस नहीं कर पाता. फॉर हिम इट्स लाइक कि यार मेरी उम्र हो गई, मैं ट्राइड एंड टेस्टेड जो है वो वही उनके लिए ठीक है. तो है कुछ लोग मतलब वो एक एज हाँ, अलग है मतलब आई ट्राइड टू मेक हिम ट्राई माय क्राफ्टेड बियर्स आल्सो, वो उनको हम्म नहीं समझ में आए. हैविंग सेड सो, हाउ डू यू फील क्राफ्ट बियर इनटू दिस एंटायर मिक्स ऑफ थिंग्स? क्राफ्ट बियर कहाँ खड़ा रहता है, कहाँ स्टैंड ले रहा है? क्राफ्ट बियर ऑनेस्टली बहुत अच्छा है बहुत अच्छा कर रहा है क्राफ्ट बियर मैं बैंगलोर से हूँ तो वहाँ पे तो ब्रूरीज का ही ट्रेंड है क्या बात है? कम्प्लीटली हाँ. बिग लार्ज ब्रूरीज कमिंग अप विद ब्यूटीफुल बियर्स बहुत अच्छी बियर्स है क्राफ्ट बियर्स इज समथिंग आई थिंक लोग पसंद करते Yeah, हैं I think it's more of the young India or the youth which are inclined towards craft beer. yes and I would say every generation Is it? yes I personally believe आप खैर बैंगलोर से आ रहे हो, बियर क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पे लोग ऐसे भी पानी हमने कम पी रहे हैं. बियर तो हमने बैंगलोर में देखी है कम्प्लीटली कि हर एज हर एज के लोग पी रहे हैं वहाँ पे एंड ब्यूटीफुल क्राफ्टेड बियर्स बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इसके अंदर मुझे आपके व्यू पॉइंट्स चाहिए वेरी गुड कंपनीज लाइक गाइस्ट टॉयट ये सब बियर्स बना रही है बहुत अच्छी बनाती हैं बट जब ये बियर्स कैन में आती है तो वो सेल नहीं है वाई आई थिंक इसमें जो बहुत बड़ा रीजन है वो सेटअप का भी है. द वे दैट द एल्कोबेव इंडस्ट्री इन इंडिया इज, सी क्या होता है, जब तक आप माइक्रो ब्रूड बियर्स हो या माइक्रो ब्रूरी से बना रहे हो तो आपका डायरेक्ट टू कस्टमर रिलेशन बन जाता है थ्रू टैप रूम्स. आप अपने टैप रूम्स खोल सकते हो, या टैप रूम्स में जैसे बॉम्बे में है, पीपल सप्लाइड थ्रू टैप रूम्स. तो वहाँ पे क्या है, कुछ बीच वाले लोग नहीं. There are no distributors, there is no retailer involved. You are the manufacturer, you are the distributor, you are giving it out to a tap room, or you are opening your own tap rooms, and then you are having this direct, I would say, a relationship with your customer. The moment you bottle it, the game changes. अब आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन का रूट लेके जाना पड़ता है. नाउ प्लस बॉटल्स के अंदर में हमारे यहाँ पे स्टोरेज की भी प्रॉब्लम्स है. सी, बियर्स आर सपोज टू बी स्टोर्ड अंडर 5 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ओवरऑल. अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा बियर को पैस्चराइज करना पड़ता है, अनफिल्टर्ड, जैसे हम लोग यहाँ अनफिल्टर्ड बियर्स बेचते हैं, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं. तो बाय डूइंग सो वो थोड़ा सा जो उसका जिसे हम फ्रेशनेस बोलते हैं, या थोड़ा सा जो उसका टेस्ट है, वो तो डेफिनेटली बदल जाता है. सो फॉर समबडी हु हैज हैड अ बियर एट अ टैप रूम which is a fresh beer category, और उसी को अगर कैन कर दे रहे हैं तो वहाँ पे टेस्ट का वेरिएंस आ जाता है, which is the problem. या which is where people feel कि यार ये वो टेस्ट आया नहीं. सो वो एक चैलेंज है. प्लस अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक जो ये चैनल है ना, चैनल बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसके लिए बियर एज अ प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा अभी फंसा हुआ है, is what I feel. या बिकॉज ये मैंने नोटिस किया था अदरवाइज तो बिकॉज यही वाले चैलेंजेस मैं समझना चाह रहा था फ्रॉम अ हार्ड लिकर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इंडिया लुक्स एट we look at it as a hard liquor market separately. And beer is separate. Yeah, beer is separate. Then there are RTDs that they say RTDs, which are below, I think 7-8% के नीचे वाली कैटेगरी अलग मानते हैं. 8 के ऊपर में हम अगेन कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट हो गया या क्या करके. सो दीज आर ऑल डिफरेंट कैटेगराइजेशन. तो इस कैटेगरी में जब लिकर आ जाती है तो लिकर में भी आई एम श्योर आप लोग को ऐसे ही चैलेंजेस होते होंगे कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ना पड़ता है, फिर आपको रिटेलर पकड़ना पड़ता है टू गेट योर प्रोडक्ट लिस्टेड, और आई डोंट नो शेल्फ में कैसे डालते हो आप लोग या क्या है, वो सब चैलेंजेस. एक्चुअली इंडिया में ना डिफरेंट स्टेट्स के साथ काम करने का मतलब है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ काम करना. अच्छा, करेक्ट. हाँ, ये भी एक इट इज देयर. जो रूल्स कर्नाटका में है वो बॉम्बे में नहीं है.
जो बॉम्बे में है वो गोवा में नहीं है. हाँ It करेक्ट. is like, मैं हमेशा कहती हूँ, working in India is like working in a continent, handling different countries. That is the biggest challenge here. As a liquor point of view, you know, excise के अलग problems होती हैं, अलग issues होते हैं. So every state has a different marketing strategy to go for. नहीं पर जैसे अभी आप लोग गया तो फिर भी शायद बैंगलोर के अंदर में आई बिलीव यू आर वर्किंग इन हरियाणा, दिल्ली. Yes, आपका yes. प्रोडक्ट दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है. जी. आप लोग मुंबई में भी हो, आप लोग गोवा में भी हो. नाउ यू आर इन बैंगलोर आल्सो. सो गोवा का तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोग कहते हैं टैक्स वहाँ पे शायद नहीं है, बहुत कम है. बहुत कम है, बहुत कम which makes the product. नहीं तो लोग ऐसा भी सोचते हैं ना कि यार गोवा वाले जो माल है वो नकली माल है, इतना सस्ता कैसे बेच रहे नहीं हैं. नहीं, नकली वकली कुछ नहीं है, बट हाँ वहाँ का टैक्सेस बहुत लो है. हाँ तो सिमिलरली आई थिंक आप लोग को कर्नाटका में इट इज थ्रू KSBCL, क्या बोलते हैं उसको, KSBCL है क्या, तो KSBCL, जो yes. तो उसमें पैसे वैसे का टेंशन नहीं है. यहाँ पे मुंबई में एसोसिएशन है, देयर इज एन एसोसिएशन दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड दे आर वेरी स्ट्रांग एसोसिएशन. मतलब वो अच्छा भी है और बुरा भी है मेरे समझ से. अच्छा ये है कि चलो आपके पैसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो एसोसिएशन बीच में आके आपको फ्लैग कर देगी, रेड कर देगी. सिमिलरली घुसने के लिए एंट्री पॉइंट पे आई थिंक एसोसिएशन में कुछ बैरियर्स हैं, जैसा मैंने सुना है. वो किस तरह के हैं, क्या है? नहीं, that's I'm saying that different government, different rules. जी. For example, एक जैसे गोवा के अंदर जब लिकर आता है डिस्टिलरी से, देन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाता है. देयर ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर. बैंगलोर, इट हैज टू गो थ्रू KSBCL एंड वही डिस्ट्रीब्यूटर्स. अच्छा, पर वो उसमें तो केस मतलब बेसिकली वो तो KSBCL के पास आपने बोल दिया तो वही हमने स्टॉक्स भेज एलोकेट दिए, कर दिया. हाँ. हमने स्टॉक्स भेज दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने एलोकेट कर दिया. देन हाउ इट गोज टू रिटेल, रेस्टोरेंट्स, एवरीवेयर, वो सबको वहां से उठाना है. बॉम्बे अगेन अ डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन मार्केट. माल आता है सारा, जितना भी स्टॉक्स आता है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है. फ्रॉम देयर इट गोज टू रिटेल और रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एवरीवेयर. ग्रेट. तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आपके टीम बिल्डिंग के ऊपर में. इट सेज दैट यू बीन इन्वॉल्व इन बिल्डिंग टीम्स, तो आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला है अच्छी टीम बनाने का? मुझे लगता है टीम को ना एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए, नॉट एज योर जूनियर और एज एन एम्प्लॉय. करेक्ट. इट इज अ फैमिली विच वर्क्स टुगेदर टू अटेन द सेम गोल. वाह, सबके गोल सेम है, सही बात है. लेकिन हम क्या करते हैं गड़बड़, मैंने बहुत जगह देखा है, वी ट्रीट बॉसेस को बॉसेस की तरह ट्रीट करते हैं और जूनियर्स को जूनियर्स की तरह ट्रीट करते हैं. आई डोंट बिलीव इन दिस. करेक्ट. I believe in it is a family which works together. They need to know their path, कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है. As a senior, as a mentor, वो बताना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी टीम को अपनी ग्रोथ आपके साथ नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो सही बात है. तो वो काम नहीं करेगा ना आपके साथ. कोई क्यों ही करेगा, सबको ग्रोथ चाहिए. सबको ग्रोथ चाहिए, आज की डेट में सबको ग्रोथ चाहिए, सबको करियर चाहिए, सबको पैसा चाहिए. आपकी टीम को आपके अंदर वो तीनों चीजें दिखनी चाहिए कि इनके साथ काम करूंगी या करूंगा तो ये तीनों मिलेगा. मतलब यही आपका मूल मंत्र है. यस, मेरा यही मूल मंत्र है काम चलो करने अब का. थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट ये बताओ, विच कॉकटेल अकॉर्डिंग टू यू डू यू थिंक आपको सबसे अच्छे से आपको आइडेंटिफाई, आई मीन यू आइडेंटिफाई विथ योर पर्सनालिटी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू. नेग्रोनी. एंड व्हाई? हाँ मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया था नेग्रोनी का. मुझे लगता है मैंने बनाई थी वो नेग्रोनी. ओके. इतनी वाहियात नेग्रोनी बनाई थी ना मैं वो बता नहीं सकता. मैंने वो थोड़ा सा मैंने साइड में रख के कोशिश किया. सी आई एम नॉट अ ट्रेन बारटेंडर ना, वो मैं थोड़ा सा कुछ गूगल पे देखा और मैंने कोशिश कर दी. बिकॉज उस दिन आई थिंक बहुत रश था. जो हमारा बाहर देखता है लड़का, ही वाज बिजी विद दी केग्स चेंज हो रहे थे और वो ऑर्डर आ गया था. मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी हीरो बन के आ गया, टेंशन मत लो, मैं बनाता हूँ. भाई साहब इतनी घटिया, मतलब इतनी वाहियात. इसमें ना मैं एक बात जरूर बोलूंगी. आजकल बहुत ट्रेंड है डिफरेंट कॉकटेल्स, यू नो, सिग्नेचर कॉकटेल्स, हर चीज का. मैंने आज तक जब भी इंटरव्यू लिए हैं ना, हमेशा क्लासिक कॉकटेल्स पे लिए. ओके. मैंने कभी आज तक नहीं लिए, क्योंकि क्लासिक कॉकटेल्स बनाना एक आर्ट है. सही बात है. नहीं, Whether इवन it's कोई भी martini, कॉकटेल बनाओ आई थिंक उसको बैलेंस करना एक आर्ट है. एक आर्ट है. बट कुछ हमारी क्लासिक कॉकटेल्स ऐसी हैं, जैसे मार्टिनी है, नेग्रोनी है, ओल्ड फैशन है. दे आर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट LIT एटसेट्रा. वो लोग सबसे ज्यादा get तो high करने के लिए, हाँ मतलब that is पीते to वही get है. high, right? But people who enjoy their cocktail completely, it's an art to make it. And very few bartenders
can kill it, to be very frank. Correct. हर बार में जाके आपको एक अच्छी ओल्ड फैशन और एक अच्छी निगरोनी नहीं मिल सकती. Absolutely right. Absolutely. There are some bartenders who kill it and they make best of the best. तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि कॉकटेल वाला कल्चर जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है? Yes, 100%. Cocktails have evolved like anything in last, I would say 6-7 years. Okay. पहले people used to go in the bars and everything, try their regular cocktails, and but अब लोग variations मांगते हैं. Hmm. आपके breweries के अंदर cocktails अगर चल रही हैं तो it Correct. means people are loving it. Absolutely. No, absolutely. मुझे ऐसा लगता है कि हम्म. देखो लोग जब घर के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें एक हम्म. एक्सपीरियंस चाहिए. उनको एक experience चाहिए. You cannot change the liquor in the bottle, right? वो तो Yes. सेम है. वो सेम है. अगर समसारा में यहाँ बैठ के पीऊँ, समसारा में घर जाके खरीद के पीऊँ या कहीं भी पीऊँ तो हम्म. वो तो वही रहने वाली. हम्म. But what you make out of that gin, हम्म. when you know make a cocktail out of it, वो एक ट्रू एक्सपीरियंस है. Yes, वो एक जिसके लिए experience है. आदमी आई थिंक पैसे खर्चने को भी तैयार है, बाहर हम्म. निकलना भी इसीलिए चाह रहा है. फॉर एग्जांपल क्राफ्टेड बियर्स भी वही है ना. व्हाई यू गो टू क्राफ्टेड बियर प्लेसेस बिकॉज यू दीज आर नॉट इजीली अवेलेबल. Exactly, these are आपको not मार्केट में easily कहीं भी नहीं available. मिलेगा. आपको हम्म. अगर चाहिए तो स्पेशलाइज्ड है. आपको वहीं सिमिलरली जाना आई थिंक पड़ेगा. कॉकटेल भी स्पेशलाइज्ड है. Yes. सो आप लोग एज अ ब्रांड डू यू इन्वेस्ट इन दीज bartending courses or bartenders wherein to push your product, ऐसा कुछ आप लोग का इनिशिएटिव है या ऐसा कुछ अ, करते हो हम करते हैं. या लोकल लेवल पे कोई इवेंट्स वगैरह आप लोग एज अ ब्रांड? हम इवेंट्स करते हैं, हम रेस्टोरेंट्स के साथ एक्टिवेशंस करते हैं, करेक्ट. हाँ. कॉकटेल्स करते हैं टू मेक पीपल ट्राई समसारा कॉकटेल्स. वंडरफुल. इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं. सो देर आर लॉट मेनी वेज ऑफ एक्टिवेशंस इन अल्कोहल एज वेल. हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बड़े बैनर्स लग जाए सिर्फ तब बिकेगी. क्या बात है. हर चीज़ ज़रूरी एक्टिवेशन नहीं तो है. आप कह रहे हो एक्टिवेशंस में आप लोगों को Activ- काफी फायदा हो जाता है. देखो लोगों के वी हैव टू रीच पीपल, सही बात है. राइट. उसके लिए जैसे आपने कहा कि थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं. हर प्रोडक्ट अलग होता है. वी आर नॉट एन एफएमसीजी प्रोडक्ट. हमें लोगों की तरफ पहुंचना है. हम चाहे रेस्टोरेंट्स के थ्रू पहुंचे, रिटेल के थ्रू पहुंचे, इवेंट्स के थ्रू पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, हमें कंज्यूमर्स की तरफ पहुंचना है. सही बात है. आपको पहुंचना है और उनको समझाना भी है हाँ, कि ये उनको समझाना है, उनको एक एक्सपीरियंस देना है इन अ ग्लास. कॉकटेल इज एन एक्सपीरियंस इन अ ग्लास सही बात है. हाँ. विच पीपल एंजॉय. एब्सोल्युटली. और एक बारी उनको पसंद आता है तो दे वांट टू हैव अ रिपीट. एब्सोल्युटली करेक्ट. यू नो, आई पर्सनली से कि स्ट्रेट ड्रिंक्स का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है लोगों के अंदर. पीपल गो फॉर कॉकटेल्स. जी हमारे यहाँ तो देखो अल्कोहल की सेल है. मतलब दो भी है फुल बार है. प्राइमा फेसी हम एक क्राफ्टेड टैप रूम है. क्राफ्टेड बियर की प्लेस है. सो आवर 50% सेल्स कम्स इन फ्रॉम द बियर एंड देयर इज ओनली 15% कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्ड लिकर आउट ऑफ व्हिच आई वुड से स्ट्रेट ड्रिंक्स तो एकदम नाम मात्र है. जो है वो कॉकटेल्स ही है. उसमें भी हाँ आपने सही बोला कि बेसिकली पीपल देयर अ लार्ज पार्ट ऑफ क्राउड those who only drink to get drunk. Yes. So LIT is highest selling cocktail in most of the bars. Yeah, most of the bars वो पी रहे होते हैं. उसके बाद तो कॉकटेल मतलब बियर्स ही पी रहे हैं. चलो ग्रेट. एक कोई सेलिब्रिटी जो आपको लगता हो कि इफ यू वांट टू कल को अगर अलाउ कर दे तो उसको आप अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करना चाहते हो कि यार ये मेरे इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर ब्रांड काइंड. True reflection of my brand. I mean let's say today Samsara only. Who would you want to sign up for? Samsara. या चलो कोई ऐसा देखो मुझे ना लाइफ में एक ही सेलिब्रिटी क्रश हुआ है आज तक. अच्छा. ठीक है. अब सेलिब्रिटी बोलोगे तो मेरा दिमाग तो वही चला जाता है टोटली. वन सेलिब्रिटी क्रश, शेफ विकास खन्ना. In love with him. Oh wow. You. Such a gem of a person, such a down to earth, big guy. Learning a lot from him. Honestly, following him, only one celebrity which I follow on Insta. His restaurants I follow, him I follow. अगर कभी लाइफ में मुझे कोई भी कोलैब करने का मन किया, definitely. Maybe this is a interesting. This could be a very interesting collab because वो तो शेफ हैं. खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं. I'm sure if you guys can approach him and tell him कि सर शेफ एक कोलैब करो हमारे कॉकटेल और आपका खाना. I'm sure you guys can pull this off. I would love to do it. 100%. That is the. और कोई चीज़ ना honestly सेलिब्रिटी के नाम पे याद नहीं आती.
चलो अच्छी बात है। सी आप इट्स योर Samsara is a very honestly, अगर samsara की बात करो, samsara is a represents lady samsara. It's a woman centric brand. वाह Yes, all the हमारी distillery में जो भी बना, it's all women who is making samsara. वाह क्या बात है। The story बहुत is बढ़िया। about lady samsara. एंड द लेडी samsara is selling also। हमें क्या हाथ है। Yeah. Not exactly, but मैं नहीं ठीक है yeah. अच्छा है। So अगर samsara के साथ कभी कोई associate हो, I कोई think celebrity, तो तो आप it has लोगों to के be लिए a I lady. think that is also what is playing good for you is because if it is targeted towards women and there are so many women working towards making this Yes. brand or the product, तो आप लोग का टेस्टिंग ग्राउंड तो घर पे ही है, जहाँ पे आप लोग ये सब टेस्ट करके पहले ही अगर कुछ रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट कर देते होगे and then you take the product out. Yeah, it So that's takes a lot of time to wonderful make a new initiative. product. Obviously टेस्टिंग होगा, प्रोडक्ट हाँ. बनेगा, बहुत कुछ है। And then probably आप लोग का हर एक उसके बाद लेबलिंग सब डिसाइड करनी पड़ती होगी। Yes, yes, everything. It's all in-house. सब अपने वहीं पे ब्रूई पे है। Yes, we are a very small company. आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी हम पैन इंडिया एज अ कंपनी, हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ 16 पीपल की है। क्या बात है, बताइए। सिर्फ 16 That पीपल that की also है। tells you about how strong the team is, right? कि आप लोग It's a 15 family करोड़ लोगों ने together. मिलके इस ब्रांड को पूरा Yes. इंडिया में पहुंचा दिया है। It's a family together, working towards the same goal. मैं हमेशा कहती हूँ, teams are Yeah, always also, I like think this. that also shows the belief system of the team into Yes. the product. Yes. Wonderful. कोई ऐसा कड़क मोमेंट आपकी लाइफ में जो आपको याद हो? बहुत सारे। हाँ तो एक दो बता दो कौन सा वाले? कड़क मोमेंट्स। कौन सा बताओ? You जो know. एक तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा कड़क मोमेंट मुझे लगता है वो जो 2 दिन पहले आपका मैसेज आया that your younger daughter has written a book, Yes. which is in fact, I mean, she's got 11, 12. She's 11 turning She's 12. 11 turning 12. She's written a book, guys. She's Yes. written a book. She has Go written a and buy book. that book on Amazon. Yes, it's It's available on Amazon, right? Amazon. The Enemy's Throne. Enemy's Throne. Throne. Wow. By Nishka Pandey. Yes. Guys, please go and buy that book. Please help her. Yes, you know, please sell that support book. her. A new author. She has something, about writing books and want to be an author. So first book needs everyone's support. For a 11-year-old to write a book is quite fascinating. मतलब मजा आया मुझे जब मैंने ये मैसेज देखा तो I think मुझसे पूछोगे तो It is it is a very big moment for me to when the published book came in my hand. So it was ऑनेस्टली मैंने उसका एक एक चीज मोमेंट एंजॉय किया है। फर्स्ट ड्राफ्ट जब आया था तब एंजॉय किया था, जब फर्स्ट पेपर कवर का डिजाइन आया था आई एंजॉयड दैट आल्सो, स्मॉल मोमेंट्स ऑफ दैट, बट यस अ वेरी बिग मोमेंट दैट शी हैज पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक। चलो that brings to the conclusion of our discussion today. So it was really wonderful to have you here. It is really wonderful कि आपने टाइम निकाला, आपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। थैंक यू फॉर So getting me here. Yeah, so thank you very much for coming in and talking to us on Kadak Talks. अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं। इतनी हमने शराबों के बारे में बात कर ली है कि यार मुझे लगता है एक बार now let's go and try some beers. बियर पीते हैं and let's say bye bye to our people here. Of course, कड़क आई हो तो कड़क बियर के बिना थोड़ी जाओगी। है पीना भी चाहिए। अच्छा आप बताओ आपको फेवरेट कड़क में से, I mean since you've tried so many beers बताया, आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है? ये कौन सी बियर आप बोलोगे कि आपकी फेवरेट वैसे क्राफ्ट बियर क्या है? मेरी फेवरेट IPA। यस। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें वो बेयर ओलंपिक्स होता है, तो बेयर ओलंपिक्स के हर एक साल पे कुछ ना कुछ ये रिपोर्ट्स निकालते हैं। एज पर द रिपोर्ट अगेन आई थिंक इट्स कंसेक्यूटिवली 4th और 5th ईयर IPA इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक फेवरेट बियर्स में से एक, लगातार 4th-5th साल ऐसा And I don't recollect the article really very well. मेरे ख्याल से हाईएस्ट सेलिंग बियर्स में या तो हेवेवाइजन है, बेल्जियन वीट है। इंडिया में यहाँ जो पी रहे हैं हमें IPA का टेस्ट नहीं है। IPA का है, IPA का टेस्ट ही नहीं है। इंडिया में IPA इतना यहाँ पे नहीं बिका नहीं। मैंने जितना ब्रूरीज में देखा है, या तो हेवेवाइजन सबसे ज्यादा जाती है या बेल्जियन वीट सबसे ज्यादा जाती है। हाँ, सो बेल्जियन वीट सबसे ज्यादा बिकती है। वीट इज आवर पैले, इंडियन पैले इज वीट। वीट अच्छा हम पी रहे हैं। लागर हम शायद शुरू से आदत पड़ी हुई है, सो लागर ऑल्सो गोज रियली वेरी वेल। दे द वेरी
छोटा लेकिन आई थिंक एवर ग्रोइंग क्राउड है टुवर्ड्स स्टाउट एंड आईपीए। Yes. बैंगलोर में तो मैंने देखा है, बैंगलोर में तो आई थिंक ब्रूरीज हैव गॉट मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ आईपीए Multiple styles of ऑन द IPA. टैप। Yes. दे आल्सो हैव बहुत सारे American IPA, English हाँ, IPA. न्यू They have, इंग्लैंड yes. आईपीए, देन डबल आईपीए, Yes, देन double आईपीए IPA. सेशन आईपीए, बहुत सारे तरह तरह के आईपीए लोग ट्राई कर लेते हैं। Hmm. हियर इन मुंबई we've got to strike balance between business and यू नो द वैरायटी। तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें आईपीए पे बहुत ज़्यादा वैरायटी कर नहीं पाते, बिकॉज वो टैप पे पड़े पड़े जो है फिर वो मुझे ही पीनी पड़ती है, और बियर पी पी के मेरे हालत देख लो। सो बट या आईपीए एंड सो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। Grow कर रहा आई है. थिंक People विद द are ऑडियंस, विद द अवेयरनेस with the awareness. एंड पीपल ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड, ये होता जा रहा है। People Alright. are evaluated, no doubt. चलो मैं आपके लिए एक आईपीए का पॉइंट पोर करता हूँ। Done. Cheers to Karak. Cheers to Karak. Thank you so much. Thank you so much.